राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी को लेकर पुलिस अब मेघालय आ रही है। मेरे साथ शिलांग के एसपी हैं विवेक जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा ऑपरेशन है इसका नाम क्या था और कैसे सभी आरोपी पकड़े गए, क्या क्लू आपको पहले मिला? See, from the day the body was found, जिस दिन लाश मिला था, तो we had a case was registered and SIT was formed. We had named this Operation Honeymoon, and though 5 to 6 members were there in the SIT, but the core members, I mean, we have the whole group for investigation where all the boys were there. There was about 15 to 20 boys actually involved in this investigation. Yes. सर, कैसे ये केस क्रैक हुआ, क्या क्लू पहले में आपको मिले? See, there was not एक particular clue है, so information बहुत different quarters से आई थी और and we pieced all this information together to get some credible evidence. So it was not particular one clue. So a lot of teams working on different clues or information and all that. And once we got this together, then it became a clue. Sir, for example, sir, किस तरह के क्लूज थे? सर, थोड़ा बताइए. See, these I cannot disclose type of actually. Sir, थोड़ी जानकारी कीजिए. No, lot of things are there. There's profiling we did because the guide had seen 3 people, so we started doing profiling. We started questioning. We started looking at our records. We started looking at people who stayed in hotels. People, so it was a huge, massive experience, massive exercise. So many people come to homestays. There are hundreds of homestays in Saura. There are hundreds and hundreds of homestays out here. Profiling all these people which match that and all that. Then technical analysis. Everything pieced together. That's how, we came about and zeroed down on the culprits. Yeah. सर, जो एक्यूज थे वो क्या सोनम के साथ में आए थे या उनके पीछे से आए थे और ये फिर कहाँ मिले, कहाँ की मुलाकात हुई, कहाँ पर ये रुके हुए? नहीं, ये अलग-अलग ग्रुप्स में अलग-अलग ग्रुप में आया था. कपल केम ऑन देयर ओन और ये 3 आदमी बाद में आया था. पीछे से आए थे सर? पीछे. सर, ये कब आए थे, डेट कब क्या? 21 को 21 मई को आए थे 3 आदमी. हाँ. तो सर ये फिर कहाँ रुके थे? सोनल के आसपास रुके थे और कैसे फिर ये वहाँ पहुँचे जहाँ पर ये मर्डर हुआ? पहला ये लोग गुवाहाटी में था. देन आफ्टर दैट दे स्टेड इन नोंगरियात एंड फ्रॉम नोंगरियात देन दे केम अप टुगेदर एंड फिर ये कांड किया था. सर, हत्या के वक्त सोनम वहाँ पर क्या मौजूद थी और सोनम ने इनसे क्या कहा था? सर, Sonam was very much present out there. Exactly what her role, though apart from her presence, whether she in the commission of the act, whether she did anything, we'll ascertain that once she comes. But it is a fact of the matter that she was very much there. और सर उसने कहा था कि हिट करो इनको? That we'll confirm. सर, हत्या के बाद सोनम कहाँ गई? पहले इंदौर गई, वहाँ क्या किया, किससे मिली, वो थोड़ी जानकारी दीजिए. इंदौर मतलब? हत्या के बाद सोनम कहाँ गई थी? इंदौर गई थी? From what we've come to know that yes, she went to Indore, but we'll confirm that. सर, आपके जो सीनियर्स हैं उनका कितना सपोर्ट रहा इस पूरे ऑपरेशन के दौरान? See, I got full support from my DGP, Madam Ida. Then our Chief Minister, Honorable Chief Minister Shri Conrad Sangma, he was there right from the beginning supporting us and had a lot of patience in us and had a lot of faith in the SIT. And our DIG, Eastern Range, Shri Davis Marak also was actually there for us and guided us all throughout. सर, आखिरी सवाल, क्या मोटिव था इस पूरे मर्डर का? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो इंडिकेट करते हैं कि ये लव ट्रायंगल है, परंतु हम लोग और जांच करेंगे इसमें. तो ये हैं एसपी शिलांग जो बता रहे हैं कि कैसे पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और सोनम हत्या के बाद इंदौर गई, वहां रात से मिली और उसके बाद उसको एक ड्राइवर ने गाजीपुर छोड़ा. शिलांग से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया. बहुत बड़ा खुलासा एनडीटीवी पर, जिसमें बताया गया कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हनीमून रखा गया था. 120 पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे, 20 अधिकारी भी थे और कैसे एक एक करके पूरे का पूरा खुलासा हुआ. कुल 42 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने इकट्ठा किया और फिर यह खुलासा हुआ. मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ सीधे जुड़ गए. मुकेश, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कुछ और जानकारी भी दर्शकों को दे दें. उसमें आपको बता दें कि 21 को गुवाहाटी आए, अलग अलग डेट में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया. आप देखिए, 7 जून को एक साथ पुलिस ने प्लानिंग की, फिर सारी जगहों पर छापेमारी हुई. सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं. 3 आरोपियों का प्रोफाइल चेक किया गया. तीनों आरोपियों के साथ सोनम वहां पर दिखी. वारदात के 10 किलोमीटर पहले सोनम दिखी थी. आरोपियों के मुताबिक सोनम ने कहा हिट करो. सोनम के सामने हत्या हुई. 21 को सभी आरोपी गुवाहाटी आए और
सोनम के पीछे पीछे आए। मुकेश सिंह सेंगर हमारे से भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मुकेश, ये बहुत बड़ा खुलासा है। आपने जो खबर भेजी थी मैं वही दर्शकों को बता रहा था, लेकिन इससे आगे की कहानी अब आप बताइए। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़े खुलासे हैं इस केस में और ये साफ हो गया है कि हत्या की मास्टरमाइंड सोनम है और साथ में उसका जो बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा है। पुलिस के मुताबिक सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर केवल शिलोंग में उसकी हत्या करने आई थी। हनीमून का कोई प्लान नहीं था। हनीमून के बहाने वो यहाँ केवल उसकी हत्या करने आई थी और उसने पूरे प्लान के तहत एक ट्रैवल प्लान बनाया और उसी के तहत वो यहाँ पर आई और शादी के महज एक हफ्ते बाद ही ये पूरी हत्या की प्लानिंग कर ली गई थी और उसी प्लानिंग के तहत वो 21 मई को यहाँ पर पहुंची। 21 मई को यहाँ पर पहुंचने के बाद उसने गुवाहाटी में जो होटल था रेलवे स्टेशन के पास में, उस होटल के बाहर से एक हथियार, जो उसके साथ में 3 लड़के आए थे जो उसके पीछे पीछे आए थे, उन लोगों ने एक हथियार खरीदा। इसके बाद सोनम शिलोंग आई और यहाँ से फिर चेरापूंजी की तरफ आगे गई। ये जो साथ में 3 लड़के थे ये भी सोनम के आगे पीछे लगातार चल रहे थे और चेरापूंजी में जहाँ पर होटल लिया गया उसी होटल के पास में इन 3 लड़कों ने भी होटल लिया और ये 3 लड़के लगातार सोनम के संपर्क में थे। इसके अलावा जो राज कुशवाहा है वो भी सोनम के लगातार संपर्क में था। सोनम ने एक स्कूटी ली और उसी स्कूटी से वो उस स्पॉट पर गई जहां पर जो राजा रघुवंशी है उसकी हत्या होनी थी। इसके बाद सोनम ने ही उन 3 हत्यारों को कहा कि राजा को हिट करो। इसके बाद 3 हत्यारों ने राजा को हिट किया और पीछे से वार किया और एक खुकरी थी जिससे एक तेज वार उसके पीछे मारा और एक उसके आगे वार किया जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मुकेश जी, स्कूटी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इसमें, क्योंकि उस फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि स्कूटी स्टार्ट करता है राजा और सोनम कुछ दूर जाती है स्कूटी से और वहां पर मोबाइल फोन पर वो ना जाने लोकेशन शेयर कर रहे थे या फिर चैट करती हुई वो नजर आ रही है। वो सीसीटीवी फुटेज का जिक्र भी पुलिस ने किया है। देखिए, बिल्कुल वो सीसीटीवी जो मिली थी पुलिस को वो भी लावारिस हालत में मिली थी और उसी स्कूटी के मालिक से पूछताछ के बेसिस पर पुलिस ने आरोपियों का और सोनम का जो चलने का पैटर्न है, जो पूरे रूट का पैटर्न है, वो हासिल किया। और ये जो 3 लड़के थे जो हिंदी बोल रहे थे, इनके बारे में कुछ जानकारी जो है वो कुछ लोकल लोगों से, जो टूरिस्ट गाइड है, उससे मिली और वहीं से पुलिस को शक हो गया। पुलिस को हत्या के कुछ ही दिन बाद 2 दिन बाद ही शक हो गया था कि सोनम जिंदा है और सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। जब पुलिस ने पूरी जांच कर ली, सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, तो 7 जून को फिर पुलिस ने एक साथ तमाम जगहों पर छापेमारी की और एक मुकेश, एक कहानी और आ रही है, वो कहानी दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है और आपने भी ब्रेक किया है। वो कहानी ये है कि वो गुवाहाटी से इंदौर पहुंची, अपने बॉयफ्रेंड से मिली, फिर उसके बाद वो यूपी पहुंची। ये कहानी क्या है, जरा ये भी समझाइए। देखिए, बिल्कुल ये सही कहानी है कि हत्या करने के बाद 23 मई को ये सभी लोग यहाँ से निकले और जो सोनम थी वो ट्रेन के रास्ते इंदौर पहुंची और इसने इंदौर जाने के लिए अलग अलग कई लोकल ट्रेनें लीं। वहां से इंदौर पहुंची और इंदौर में इसकी मुलाकात राज कुशवाहा से हुई। राज कुशवाहा से इंदौर पहुंचने के पहले भी और हत्या के पहले भी ये लगातार संपर्क में थी। अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से और जो मोबाइल के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उससे ये साफ हो गया कि वो लगातार संपर्क में थी। राज कुशवाहा ने इसको 25 मई को इंदौर में एक किराए के कमरे में रुकवाया और ये वहां रुकी एक रात में। उसके बाद सुबह राज के कहने पर ही एक ड्राइवर ने इसको उत्तर प्रदेश में छोड़ा। लेकिन मुकेश, सवाल ये भी है कि आखिर फिर ये इंदौर से गाजीपुर क्यों आई है? क्या ये नेपाल या किसी दूसरे देश भागने की फिराक में थे? देखिए, गाजीपुर आने का मकसद क्या है ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जब पुलिस ने प्रेशर क्रिएट किया और लगातार पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही थी, तो उसके चलते ये लोग लगातार लोकेशन बदल रहे थे, क्योंकि इनको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं पुलिस को शक हो सकता है। इसीलिए जो सोनम है वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थी। हालांकि जो आरोपी राज है वो केवल इंदौर में ही रहा और अपने घर में रहा, वो कहीं नहीं गया, लेकिन सोनम को कहीं ना कहीं डर लग रहा था और वो लगातार लोकेशन बदल रही थी। तो राज के कहने पर ही एक ड्राइवर ने सोनम को उत्तर प्रदेश में छोड़ा
और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर घूमते हुए वो गाजीपुर पहुंची, जहां पर उसको रिकवर किया गया, बरामद किया गया और उसके बाद में जो है पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। मुकेश, आप बने रहिए। आप जो ये खुलासा कर रहे हैं ये बहुत बड़ा खुलासा है एनडीटीवी पर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हत्या के बाद वो पहुंची इंदौर रुकी और इंदौर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसने मुलाकात की और फिर एक ड्राइवर के माध्यम से गाजीपुर छोड़ा। गाजीपुर क्यों पहुंची इस पर भी बात करेंगे। मुकेश, आप नजर बना के लगातार रखिएगा।